I am Aditi Bahadur, President of Innovate Club of Durg, and on behalf of my club, I welcome you all to our session today, Ask Your Doctor. Today we have with us our very own enthusiastic and charismatic Bhilai girl, Kanika Sachdev, who is a renowned dietitian in Mumbai. Kanika has over 20 years of experience as a consultant dietitian, bariatric dietitian. She is a certified diabetic educator with a scholarship from V. Mohan and Diabetic Clinic. She has been honored as the most iconic woman in nutrition field on Women's Day. We are grateful to her for taking out her valuable time for us today. Thanks a lot, Kanika. Today, Kanika will be Certainly. educating us on diet and nutrition during and after COVID. A lot of patients complain about weakness and acidity due to the medication of this of during that they take during COVID times. So Kanika will help us to resolve them and give us tips on how to combat this. During the session, you all will be muted. If you have any queries, please note it down in the chat box below and we will ask Kanika. And at the end of the session, we will unmute you all where you can ask your questions. So over to you, Kanika. Hi, everyone. I will first take an opportunity to say thank you to Innoveek Durg for giving me an opportunity to talk to you, to connect with you all at this difficult time. Thank you so much. Hi, we all are going through a difficult time, a tough time. Many of us, our dear ones, have gone through COVID, and we have seen them suffering. There's health suffering. Their mental and physical, both health are on roll. So let's beat this COVID-19 by keeping us more healthier and fitter. Hi, this is dietitian Kanika Sachdev from 20 years of experience as a consultant dietitian, bariatric dietitian, diabetic educator. In these 20 years, I've been attached to Apollo Clinic as a consultant dietitian and Hiranandani Hospital, Powai as a bariatric dietitian. So here I am, one stop for your diet wellness. I must say, then in last 1.5 years, I've seen many of the COVID clients who've been suffered and who have been really, I think I should say their health have been suffered with the COVID. They were COVID positive, and after that also they have suffered a lot because of its effects, the medication effects. So I'm jotting down here some few dietary guidelines with which we can recover fast and we can manage it in very well condition. So, first of all, I'll say that we need to see the comorbidities first. They are in the first preference, like comorbidities like diabetes, hypertension, आपके indigestion की problem जो कोविड और ज्यादा ट्रिगर कर देता है. Like I've seen many clients who were not diabetic, but after COVID they got diabetes or hypertensive or some heart problem because of its effects only. So we need to manage them very well first of all. Second, the indigestion problem, the lack of digestive enzymes, I should say, or as the sense of smell and taste is not there, so unka khane ka man nahi karta, and as they don't eat, they get more acidic. So these things we need to manage it. And lastly, we need to manage their hydration, because hydration is the most important thing in this. So let us see which nutrients are really required for recovering from this COVID-19 situation. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डाइजेशन बहुत वीक हो जाती है. I must say these things are all interrelated. हमें टेस्ट और स्मेल नहीं रहता, that's why we don't eat. We don't eat, acidity got trigger. Acidity trigger होती है तो हम खाना नहीं खाते, इससे weakness आती है. So it's all in a vicious cycle. So we need to break this vicious cycle. We need, first of all, most important thing is water.
or should I say fluids, water तो चाहिए ही चाहिए. We need to drink around 3 to 3.5 liter water every day. I know it's not easy, but if we'll drink sip by sip, तो हमारे लिए easy हो जाता है. Maybe we'll not drink half a glass of water at a time, but at least 2-3 sips at a time we can drink in that. And we can, as हम कुछ खाते नहीं है तो हमें बहुत nauseatic feeling होती है और water का taste हमें कड़वा लगता है, and that is the reason हम पानी नहीं पीना चाहते. तो उसके लिए there is a very simple way. हम water को, जैसे 3 liters bottle है तो हम हर bottle में एक flavor डाल देते हैं. जैसे एक में हमने मिंट डाल दी, एक में सिनेमम डाल दिया, एक बॉटल में हमने तुलसी डाल दी, या एक में हमने इलायची डाल दी, या एक में हमने कुछ ड्रॉप्स नींबू डाल दिया. तो ड्रॉप्स डालना है, हमने नींबू पानी नहीं बनाना है, हमने जस्ट उसको फ्लेवर करना है ताकि हमें वो फ्लेवर देता जाए. ओके, सो इन दिस वे वी कैन अटेन 3.5 लीटर ऑफ वाटर. जैसे मैंने कहा कि नॉट ओनली वाटर, but we need to take lot of other fluids also. अब मैं fluids बोलती हूँ तो सबसे पहले सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, juices. So I'll say no, not fruit juices, but yes to vegetable juices. Fruit juices are given to the persons who are totally bedridden, जो कुछ नहीं खा सकते. But touch wood, most of the people are not in that condition, so I'll prefer giving them fruit rather than juices. Okay, so I'm talking about the juices as the vegetable juices. There are a lot of vegetables which we can use as a juices. और अगर हम latest fashionable terminology बोले तो smoothies. Okay, so again smoothies are very much in thing. We can use curd or milk for the smoothie. Okay, but without any sugar, without any ice cream, without any cream. We can make smoothies of all freshly available fruits. We can make all freshly available vegetables. Like हम beetroot को use कर सकते हैं smoothie के लिए, हम पालक को use कर सकते हैं smoothies के लिए. In the same way, we can make vegetable juices also, like beetroot, carrot, tomato. It's a most commonly available vegetable, and they are most, I name it as an antioxidant juice. They are very good. This juice is particularly is very good. So make sure that you are using these three things: beetroot, carrot, and tomatoes. Beetroot is iron rich, and a lot of antioxidants are there. Again, tomato is a powerhouse of antioxidant, anti-cancerous, and carrot is vitamin A, again which is required for the recovery of the COVID-19. So this is a powerhouse. You can use this juice. You can use palak smoothie also, or a palak juice, palak, cucumber, coriander, and a little, just a dash of lemon. Again, this is also very good. So these kind of juices are very good. Now next, coming to the haldi. Haldi is again, first of all, I want to say that we are blessed that in Indian diet, we have lots and lots of herbs and lot of spices which help us to recover. Okay, they have medicinal value. We are really blessed. So haldi is one of that. अगर हम बड़े बुजुर्गों के हिसाब से जाएं, अपने दादी वगैरह के हिसाब से जाएं, तो अगर कुछ भी होता था वो हमें हल्दी खिलाते थे या हल्दी का लेप लगा देते थे, बिकॉज इट इज एंटी इंफ्लामेटरी. ओके, अगर हम साइंटिफिकली जाएं तो इट हैज बीन प्रूवन दैट द कंपोनेंट इन द हल्दी इज वेरी गुड. इट इज एंटी इंफ्लामेटरी. सो हल्दी का जो पानी है वो हम ले सकते हैं. हल्दी का दूध भी हम पीते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, इन कोविड आवर लंग्स आर अफेक्टेड, और दूध लंग्स को और ज्यादा तकलीफ दे सकता है टू मेनी पीपल. मेनी पीपल से इट इंक्रीजेस देयर कंजेशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम दूध को थोड़ा साइड रख दें, हल्दी वाला पानी इज वेरी गुड.
बट उसमें हमने 1 चुटकी हल्दी नहीं डालनी है, मिनिमम ½ स्पून to 3/4 ऑफ स्पून हमको हल्दी डालनी है। तो कुनकुने पानी में, वी डोंट नीड टू टेक अ वेरी हॉट वाटर, ल्यूकवार्म वाटर में जस्ट मिक्स 3/4 स्पून ऑफ हल्दी। अगेन दैट काइंड ऑफ वाटर इज वेरी गुड, हम वो ले सकते हैं। अगर आपको उसमें नींबू डालना है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, बट सिंपल अगर हल्दी वाला पानी पियेंगे तो वो भी अच्छा है। ऐसे ही वन ऑफ द वेरी richest source of vitamin C and antioxidant sources आंवला, जो हमें बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। आंवला is a very good source of vitamin C. Vitamin C is required for the immunity, for the recovery, and for the uh, as I said, immunity. Okay, so we can use amla as a combination with आप नीम के साथ ले सकते हो, as in combination with ginger. We don't have to take a full glass of amla juice. We just need to take 50 to 75 ml of juice. So that we can combine with neem. Neem is again very good source of a lot of antioxidants, and it's a blood purifier. ओके हमने वही बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, नीम का पानी आपके खून को साफ करता है, स्किन के लिए अच्छा है, एपेटाइट के लिए अच्छा है। तो वी कैन यूज नीम एंड आंवला ऑल टुगेदर। अनदर कॉम्बिनेशन विच with amla we can give is, as I said, adrak, ginger. Again, ginger is its therapeutic value. So uska bhi again 50 ml of juice is sufficient. We don't require more than that. Okay. Now, next is sattu. Again, as I said, we are blessed with Indian recipes and authentic recipes. जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो recipes लेते थे, they are very good for our health. Sattu is one of the authentic recipe, and it has very high qualities. Like especially abhi summers में, it is a very big coolant. It is high in protein, high in fiber. It really helps diabetes to get managed. तो हम सत्तू की ड्रिंक बना सकते हैं। अगर आप सत्तू घर में नहीं बना पाते, इट्स ओके, वी कैन गेट इट फ्रॉम मार्केट। मेनी ब्रांड्स आप अमेज़न में चेक कर सकते हो कि जहाँ पे सत्तू मिल रहा है इन डिफरेंट ब्रांड नेम्स, यू कैन यूज दैट। सत्तू को आपने पानी में डाला, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाला एंड लिटिल लेमन, which is very good for acidity. It will keep your body cool. As per the medicines of the COVID-19, the medicine imposes lot of acidity in your body. Acidic reflux बहुत होता है, but हम उसे और ट्रिगर कर देते हैं क्योंकि हम कुछ खा नहीं रहे। तो सत्तू is one of the very good appetizer and very good coolant. So we can use sattu in that. Another fluid I want to mention it over here is कोकम juice. कोकम भी बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, स्पेशली इन समर। अगेन इट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो वी कैन यूज अगेन कोकम शरबत। तो उसमें भी हम थोड़ा नमक डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो यू कैन यूज शुगर, देयर इज नो हार्म। इफ यू आर डायबिटिक देन आई प्रेफर टू यूज any artificial sweetener, maybe a stevia or zerodol, but not a gur nor honey. Here I want to clear this one of the very big myth, जो आजकल I should say it's a money making gimmick. Many companies are saying it कि gur is healthier, so even diabetics can use. No, गुड़ और शुगर दोनों किससे बनती है? शुगर केन से. So both are dangerous for the sugar. So please don't get in this kind of trap. So please don't use gur instead of sugar for diabetics. So for diabetics, both are wrong things. Even honey. So अगर हम सत्तू पी रहे ये कोकम शरबत ले रहे हैं तो either artificial sweetener डालिए या फिर आप नमक डाल के लीजिए. Okay. So next drink I want to specify is soups. Soup. There are many soups which we can use and we can drink to increase our appetite in this situation. Like mixed vegetable soups,
आपने बीटरूट यूज किया, टमाटो यूज किया, गैरेट, और जो मैं इसमें एड ऑन करवाना चाहूंगी दैट इज ड्रम स्टिक। मैं ड्रम स्टिक को इन वेजिटेरियन चिकन मानती हूँ। इट हैज सो मच पावर एंड सो मेनी न्यूट्रिएंट्स। Basic cheese है drumsticks, but it has many nutrients. So you can use drumsticks in your vegetable soup because it has calcium, it has protein. Again, it is a very good source of vitamin A and C. So again, lot of antioxidants are there in that. So in mixed vegetable, you can add drumsticks also. Another soup is palak soup. Palak mushroom you can make. Palak, simple palaks, you can use, make palak soup. The another soup is, if you are a non-vegetarian, chicken clear soup. सिर्फ जो चिकन का हमारा पानी है, आपने चिकन बॉईल किया in a cooker with just salt and maybe just one cinnamon, part of cinnamon or a long. So that clear chicken soup is very, very nutritious. The same way in a vegetarian soup, it's chana soup. जो ब्लैक चने का सूप होता है, इवन जो काबुली चने का सूप है, इवन दैट इज वेरी वेरी हेल्दी। तो आपने चना बॉईल किया नमक के साथ, तो उसका जो पानी है वो ले लीजिए, उसमें आप सॉल्ट के साथ डैश ऑफ लेमन डाल सकते हैं। हियर आई वांट टू गिव वन टिप टू एवरीवन। जब आप लेमन यूज करते हैं तो लेमन को डालने के बाद प्लीज डोंट बॉयल इट और डोंट वार्म इट। जो लेमन की विटामिन सी होती है वो 0 हो जाती है, इट्स ऑफ नो यूज। सो इफ यू आर यूजिंग इट इन अ टी और इन एनी फॉर्म, तो आप लेमन डालने के बाद डोंट वार्म इट और डोंट बॉयल इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So you can use chana soup. You can make use of broccoli also. Again, broccoli has vitamin A. Zinc is there in that. Protein is there. So we can use broccoli as a soup, medium, mixed vegetable and broccoli soup. So these soups also can be taken. So every day you can take one soup, one vegetable juice. Don't emphasis on your appetite, मतलब खाना, मील जो रोटी है, अगर वो आपसे नहीं ज्यादा खाई जा रही है तो इट्स ओके, आप उस पे एम्फेसिस मत कीजिए। हम ये थोड़ा 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 हम ये चीजें लेते जाएंगे, दिस विल इंक्रीज योर एपेटाइट विद इन फ्यू डेज, मे बी 2 days, मे बी 3 days, बट एटलीस्ट अपने स्टमक को एक चांस दो टू रिवाइव। हम क्या करते हैं, या हम एक्सट्रीमली भूखे रहते हैं कि मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, और अगर हमारा मन करता है तो हम बहुत हैवी मील्स लेना शुरू कर देते, इतना तो खाना खाना ही चाहिए। डोंट डू दैट। सो द बेसिक फंडा ऑफ दिस scenario is of taking care of this is small and frequent meals. We need to take small meals, and frequent, maybe frequently, like 2 hours frequently or 2.5 hours frequently. It depends on the meal what you have eaten. Okay, so this is the about or everything about fluid. Here I want to give one more main point. Please don't take any kind of sodas, any kind of Tetra Pak juices, or any kind of Tetra Pak milk. No, normal milk is not good, almond milk is good, soya milk is good. Again, you are getting trapped in the gimmick, money making game. They are good, नो डाउट इन दैट, बट वो एक चीज अच्छी ला रहे हैं तो 9 चीजें उसमें टॉक्सिन्स भी हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, मेनी अदर थिंग्स। आप अगर उसमें लेबल देखेंगे, आप सिर्फ प्रोटीन कंटेंट देखते हैं या शुगर कंटेंट देखते हैं, बाकी प्लीज रीड द लेबल प्रॉपरली एंड फुल्ली, आई मस्ट से। उसमें आप देखेंगे सोडियम कितना जा रहा है, बाकी टॉक्सिन्स कितने जा रहे हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ ऑल दोस राइट नाउ। अगर हमारी इंडियन डाइट, अगर हम उसमें से मेन ऑथेंटिक चीजें भी खा लेते हैं, दैट विल रिकवर द मोस्ट importantly and more better way. Okay, so this is about fluids. Now coming to the protein part. Protein is our building block of our body. Everything from head, from this hair to toe nail, protein is required. So we need to have a good protein diet. अब अगर हम वेजिटेरियन हैं,
there are many sources of plant protein. Dal, legumes, whole grains, lot of vegetables are having proteins. Okay, we can take a lot of snacks like makhana, hamare seeds have lot of nuts, and seeds have lot of proteins. Nuts like almonds can be used, walnuts can be used, but again the quantity to be taken care, and about I must say the comorbidities which are there with you, that has to be taken care. Okay. In the same way, nuts like peanuts, again very good. Again, the conditions has to be taken care. What condition is there? So those things can, if some children are suffering, then they can be given nuts and oilseeds in a good amount. Okay. But good amount का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन nuts and seeds ही देते जा रहे हैं. Okay, so we can make use of these nuts and seeds in the form of granola bars, which are made up at home only. Again, I won't prefer the market ones. Again, market ones will have sugar. अगर sugar नहीं तो sugar का substitute होगा. Okay, then a lot of I must say, as I said, toxins are there, preservatives are there. तो वो एक चीज अच्छी ला रहे हैं तो 10 चीजें बुरी भी ला रहे हैं. We can easily make granulas bar at home. हमने nuts लिया, sugar की जगह हमने गुड़ ले लिया या हमने dates ले लिया. Again, here I want to mention it. No taking advantage of good and dates for diabetics. Okay, so this is important. So we can make use of oats. We can make use of seeds, mixed seeds, sunflower seeds or melon seeds, flax seeds. We can use that in the granola bars. Okay, these are plant protein sources. Now coming to the non-veg protein sources, chicken, egg, fish, again very good sources of protein. So we can take that. Every day we can take egg. Every day we can take 2 pieces of chicken or fish, but not in a fried way, in a saute kind of a way or in a grilled way. Okay. Here I want to give one tip. हम बोलते हैं हमने फ्राई नहीं किया, हमने शैलो फ्राई किया. अब शैलो फ्राई में भी अगर आप 4 to 5 spoons of oil डाल रहे हैं और उसको सौते कर रहे हैं, then it's of no use. शैलो फ्राई का मतलब ये होता है कि आपने जस्ट 1 spoon of oil या आपने नॉन स्टिक पैन में आपने ब्रशिंग की ऑयल में एंड आपने उसको कुक कर मैरिनेटेड को. अगर इफ दैट इज द केस देन इट इज डन. बट अगर आप शैलो फ्राई में भी 4-5 spoons of oil ले रहे हैं, then it is as good as deep fried. So don't give that way. क्योंकि नॉनवेज में अपना ऑयल पहले ही होता है, so there is no need of oiling in that. Okay, so this is very important. So make sure that in every meal there is a protein source. तो अगर आप breakfast ले रहे हैं, yeah, most important, I forgot to tell you, protein sources, milk and milk products. So we can use that also. Milk ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, हम ये आपका पनीर ले सकते हैं. अगर कोई बच्चा है तो हम उसको चीज भी दे सकते हैं. Cheese is not that bad. Butter is bad than cheese. और चीज ज्यादा बदनाम है. तो इसलिए क्योंकि चीज में प्रोटीन होता है, बटर में प्रोटीन बहुत कम होता है, फैट ज्यादा होता है. That's why we try to avoid butter, but we can take cheese. So these are again, तो हम ब्रेकफास्ट में दही इंक्लूड कर सकते हैं. अगर आप एग खा रहे हैं तो एग ले सकते हैं. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप स्प्राउट्स को यूज कर सकते हैं. But make use sprout as a boiled sprouts or a steamed sprouts, not as a कच्चा sprouts. हमारे बॉम्बे में मिसल एक तरह का स्प्राउट्स से डिश होती है, तो मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ मिसल बना सकते हैं. ओके, दैट इज अ काइंड ऑफ अ दाल प्रिपरेशन, तो हम उसको यूज कर सकते हैं. तो आप नाश्ते में ये ले सकते हैं. लंच और डिनर में वी कैन यूज दाल एज अ प्रोटीन सोर्स. So make sure that in every meal, all 3 meals, you are having a protein source. Now coming to multivitamins. Vitamin A. Vitamin A is very much required for the recovery. So again, we can take it from the diet.
हमने बचपन से पढ़ा है, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। विटामिन ए का सोर्स है और येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो आपको जो भी येलो ऑरेंज वेजिटेबल्स मिलती है, यू कैन मेक यूज ऑफ इट। मे बी अ पम्पकिन, मे बी एनीथिंग, मे बी अ दूधी, मे बी आपके मैंगो, अभी मैंगो सीजन में है। बट अगेन, ऐसा नहीं कि फ्रूट में आप पूरा टाइम मैंगो ही खाते जाए। whatever seasonal fruit is available, please make use of it. So विटामिन ए के लिए हम ब्रोकोली भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ब्रोकोली नहीं मिलेगी तो हमें विटामिन ए नहीं मिलेगा। So there are other sources also for vitamin A. Carrots are there, beetroots are there. So make sure that you are using these vegetable in some or other forms. Okay, vitamin E. Next is vitamin E. Vitamin E is required for accelerating healing quality. Healing के लिए हमारे को विटामिन ई चाहिए. Vitamin E is again in egg, broccoli, then sunflower seeds, mango. So these are natural, very easily available sources. So we can make use of it. Okay. Supplements हम ले सकते हैं विटामिन ई के, which is with the doctor we can consult and ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई के dietary sources थोड़े कम हैं, and mostly in non-veg sources it's there. So if you are a vegetarian or a vegan, then I'll tell you to consult doctor for the vitamin E supplements. Okay. Then vitamin D. Vitamin D is very much required for the recovery of from COVID. जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है हमारा सन. तो अगर आपका अपना पर्सनल टेरेस है, तो I'll say to have a sun time in the morning time before 10 o'clock. Okay, that is one of the biggest source of vitamin D. Then we have milk and milk products, mushrooms, eggs. So these are again a very good sources of vitamin D. तो हम जैसे मशरूम का हम ऐसे पालक के साथ मशरूम सूप बना सकते हैं, या मशरूम की सब्जी बना सकते हैं, या मशरूम सैलेड्स में डाल सकते हैं. Whatever is the way you can add mushrooms. Last is vitamin C. Vitamin C is very good source of vitamin C is required for healing purpose. Okay, immunity purpose, recovery, healing, I said, and lot of digestion problems also. So vitamin C के बहुत ही easily and convenient sources जो हम घर में हर रोज यूज करते हैं, that is tomato and lemon. बट जो टोमेटो है, अगर हम सब्जी वाला टोमेटो काउंट करें तो उसकी विटामिन सी बिल्कुल 0 हो गई है, क्योंकि विटामिन सी अगर हम आंच पे लगा करते हैं, तो हम उसको कुकिंग करते हैं, तो उसके विटामिन सी 0 हो जाए. सो आई प्रेफर यू टू गिव सैलेड tomatoes in salad, or I can say कच्चा टोमेटो. So make sure that you are eating one tomato in a whole day. अभी summers हैं, तो we can use नींबू, लेमन एज अ नींबू पानी. ओके, हम नींबू पानी ले सकते हैं, हम दाल में नींबू डाल सकते हैं, हम वैसे यूज कर सकते हैं. हम एक और तरीका है जो हम लेमन रिन को मैंने यूज किया है, दिस इट्स अ डिटॉक्स वाटर और एंटीऑक्सीडेंट वाटर. इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है, यू कैन सी. मैंने अनकट लेमन डाला हुआ है because I wanted to use the lemon rind. Lemon rind has more vitamin C rather than lemon. Okay, मैंने mint leaves डाली हुई है, which is again very good for digestion. पुदीना ठंडक रखता है पेट में. मैंने तुलसी डाली हुई है, again which has a lots and lots of medicinal value. And जो अभी आपका because of COVID irritation in throat होती है या dry cough होती है, so you can use these. तो अगर हम ये पानी अपने आप के पास, इसको मैंने अराउंड 6 आवर्स भिगो के रख दिया है. जैसे मैं ओवरनाइट मैंने उसको भिगो के रख दिया, आप सुबह इसको यूज कर सकते हैं. तो ये वाटर क्या करेगा, इट हैज मेनी बेनिफिट्स. फर्स्ट, आपके डाइजेशन को बेटर करेगा, बिकॉज इसमें सारा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करने के लिए है. दूसरा, इट विल गिव वेरी फ्लेवर, वाटर में आपको फ्लेवर देगा. जैसे आपको पानी पीने का नहीं मन कर रहा है, जैसे मैं आपको बता रही थी, फ्लेवर्ड वाटर, यू कैन यूज दिस. ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन मेक फ्रॉम
everything from kitchen. It's just we need to see and we need to trust our ancestors, I should say, because they really help us during these times. जो हमारी authentic चीजें हैं वो हमें बहुत help कर रही हैं कोविड से recover करने के. Okay, now as I was on vitamin C, lemon is one of it. I said second is आंवला. I've already told you about that कि हम आंवला को बहुत अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं. हम आंवला की कैंडीज बना सकते हैं. हम आंवला के कैंडीज मतलब हम नमकीन कैंडी भी और मीठी कैंडी भी. बट इफ यू आर अ डायबिटिक then or a pre-diabetic, then I'll prefer to use it in a salty way. Okay, हम छोटे छोटे आंवला को काट के उसको नींबू के रस में थोड़ी देर डिप करके उसको हम सुखा दें तो वो कैंडीज बन जाएंगी. We can use these candies when amla is not in season. Okay, टमाटो हो गया आपका, लेमन हो गया आपका, आंवला हो गया. अदर थिंग्स आर जो हमारे रोज के टाइम में मिलती है, इमली है, कोकम है. हाँ, बट हम उसको इतना फ्रीक्वेंटली नहीं यूज कर सकते. बट येस, whenever get a chance, do use it. Okay, so now coming to the next part is vegetables and fruits. As I said, a lot of mineral and vitamins are required for the recovery of from COVID. So vegetables and fruits are the one which will give you multivitamins. So make sure that in a whole day, you are taking 5 servings of your vegetable and fruits. Okay, 1 serving of green leafy vegetables, 3 serving of your other vegetables, and 1 to 2 serving of your fruits. If you are a diabetic, then I'll say 1 serving of fruit. If you are non-diabetic, then I'll say 2 serving of fruits. Okay, so why green leafy vegetables? Green leafy vegetables have lot of vitamin A and lot of iron and other things which help, and zinc also, which help us to recover very fast. So make sure that आप उसको use करें, maybe in the form of smoothie, maybe a palak kind of a thing, maybe मेथी. और सिर्फ एक पालक और मेथी नहीं है, लाल भाजी जो बहुत easily available है, फिर मूली पत्ता भाजी एंड गोभी के पत्ते, जो फूल गोभी के पत्ते होते हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि उसमें पालक से ज्यादा आयरन होती है. हम पालक के पीछे पीछे भागते जाते हैं कि पालक नहीं मिल रही या पालक खाएं. ये जो बहुत इजीली अवेलेबल है जो फूल गोभी के पत्ते हैं वो उसकी भाजी बने. अगेन दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड अदर मल्टीविटामिन. फिर अदर वेजिटेबल्स में आपके सारे वेजिटेबल्स आ गए, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो टिंडा हो, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो आपका पंपकिन हो. Make use of all vegetable, maybe in a vegetable soup form or a juice form or a simple vegetable form. जैसे आपकी कंडीशन है, make sure of. Now coming to the fruits. आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं. बेचारे केला और मैंगो को हम इतना बुरा बना चुके हैं, but even they have very good qualities. So yes, if you are a diabetic, then you need to take care of it. But if you are not diabetic, make sure that you are using all fruits. Don't just stuck to mango. अगर मैंगो समर में, सिर्फ समर में आता है, तो वाटरमेलन और मस्क मेलन भी सिर्फ समर में आते हैं. So make sure that you are repeating fruit in 5th to 6th day. So for all 5 to 6 days, you are eating different food. Maybe one day muskmelon, maybe second day watermelon, papaya, banana, then mango, then again repeating, or maybe apple, maybe guava. So whichever is the seasonal fruit, that is the most nutritious one. Another thing, it is pocket friendly. So make sure that you are using fruits in a proper manner. Now, another thing, ये तो हमारे पूरे खाने की बात रही. अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो हम ये तो देखते हैं क्या खाना है, क्या आप नोटिस करते हैं कब खाना है और कितने फ्रीक्वेंसी में खाना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन में खाना है? नो, वी डोंट टेक केयर ऑफ दैट. एंड विच इज द ड्रॉबैक ऑफ दैट? वहीं पे हमारी एसिडिटी ट्रिगर होती है. जैसे मैंने बताया है आपको कि मेन हमारा फंडा टू ट्रीट इन दिस सिचुएशन इज
स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। तो हैवी मील्स तो खाने नहीं है, स्मॉल मील्स लेने हैं, बट अगेन हमने 4 आवर्स हमको गैप नहीं देना। सो मील फ्रीक्वेंसी शुड बी अराउंड लाइक अर्ली मॉर्निंग थिंग, ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, lunch, mid-evening, late evening, and dinner. So make sure that 6 meals you are having, but small meals, not heavy meals. So this will help your stomach and liver basically to revive. Okay, because liver is very much damaged in this COVID-19. And because of that only you're not having appetite and other things. So we need to give time for the liver to revive with these things. So meal frequency is very important. Now combination is very important. As I said, protein and carb should be there. तो मॉर्निंग में अगर आप एग खा रहे हैं तो ये नहीं कि आपने 2-3 एग खा, उसके साथ एक कार्ब का कॉम्बिनेशन जरूरी है, मे बी 1/4 रोटी, मे बी हाफ रोटी, और अगर आपको मन कर रहा है तो यू कैन हैव ब्रेड ऑल्सो। ब्रेड एकदम इतना बेचारे को नेगेटिव मत बनाओ, yeah, but half slice of bread to 1 slice of bread. And here I really want to mention it, don't go behind the brown bread hai, brown bread. Many times it's just again a gimmick. वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ कलर डाल रहे हैं। तो अगर आपके पास व्हाइट ब्रेड भी अवेलेबल है, so make use of it. Okay, so कॉम्बिनेशन में प्रोटीन और कार्ब का जरूर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा, ऑथेंटिक जो हमारे डाइट्स हैं, जैसे कि खिचड़ी, आई रियली वांट टू मेंशन इट, इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी मील, क्योंकि उसमें सीरियल और आपका सीरियल और आपका पल्स मिक्सचर है, दाल चावल का मिक्स, दैट इज अ वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी न्यूट्रिशियस। द सेम वे गुजरातीज में जैसे खमन ढोकला बनता है, साउथ इंडियन में आपकी इडली डोसा बैटर बनता है, चावल और दाल का मिक्सचर। तो हम, और मारवाड़ीज में दाल ढोकली बनती है, इवन इन गुजरातीज आल्सो दे ईट, सो दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इज वेरी वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। तो हमें कुछ ज्यादा कहीं लॉकडाउन है, कुछ ज्यादा कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, तो एटलीस्ट हम ये मिक्सचर्स का, ये रेसिपीज का यूज कर सकते हैं। अब इसी को और न्यूट्रिशियस बनाना है तो हम मसाला खिचड़ी बना सकते हैं। आपने दाल चावल का प्रपोर्शन लिया, जैसे 4 स्पून दाल ली, 2 स्पून चावल ले लिया, उसमें हाफ कटोरी आपने मिक्स वेजिटेबल डाल, तो आपकी मसाला खिचड़ी बन गई। So in this way you have got vegetables also, dal also, and cereal also. So this combination means a lot and very nutritious. So these kind of a thing you need to take care. Next is munching snacks. अब आपका खाने का मन नहीं कर रहा, मेरे को खाने को देख के उल्टी आ रही है. These are the main statements many people say because they are feeling nauseous. तो मंचिंग के लिए आप क्या स्नैक्स दे सकते हैं? बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है मखाने, पहले से अवेलेबल थे लेकिन अभी हम ज्यादा उसके बारे में बात करने लग गए हैं। तो मखाना इज वेरी वेरी हेल्दी। तो अब रोस्टेड मखाना मैं बोलती हूँ, बट रोस्टेड मखाने के लिए सब फटाफट गूगल अमेजोन सब देखने लग जाते हैं, हमारे को कहाँ पे कौन से फ्लेवर पे मिल रहे हैं, हम वहां से मंगाते हैं। डोंट डू दैट, प्लीज प्रिपेयर रोस्टेड मखाना एट होम ओनली। अगेन सेम फंडा, एक अच्छी चीज के साथ 9 टॉक्सिक चीजें आ रही, तो आप घर में रोस्टेड मखाना कैसे बना सकते हैं? 250 ग्राम मखाने के लिए आप 1 स्पून घी लीजिए बड़े कढ़ाई में या आपके पैन में, और उसमें आपको जो फ्लेवर चाहिए आप वो डालिए, पेरी पेरी, चाट मसाला, नमक या काली मिर्च या लहसुन, अगर आपको वैसा फ्लेवर चाहिए, या अगर ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स चाहिए वो डालिए, एंड 250 ग्राम्स ऑफ मखाना उस पे सौटे कर दीजिए। तो अगेन आपका रेडी हो गया रोस्टेड मखाना वेरी इजीली, और हमारे पास कोई टॉक्सिन्स भी नहीं आए। सो लाइक दिस यू कैन यूज रोस्टेड मखाना। ओके, ये एक बहुत अच्छा मंचिंग स्नैक है। एक जो मैं बोलना चाहूंगी इज दैट मिक्स सीड्स। मिक्स सीड्स बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हैं। सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, आपके पंपकिन सीड्स, आपके फ्लैक्स सीड्स,
चिया सीड्स, जो सब्जा है, जो हम बहुत इजीली, जो हम फलूदे में डालते थे सब्जा, वो भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। ये 5-6 सीड्स को हम जरूर यूज करेंगे टू मेक मिक्स सीड्स। अगेन आप थोड़ा सा घी डालिए, मे बी 50 ग्राम ऑफ ऑल सीड्स एंड 25 ग्राम ऑफ फ्लैक्स सीड्स आपने यूज किया, उसको सौते कर दिया, उसमें आपने थोड़ा नमक डाल दिया। इफ यू आर हाइपरटेंसिव तो आई से नॉट टू ऐड एनी चाट मसाला एंड ऑल, बट अगर आप नॉन डायबिटिक नॉन हाइपरटेंसिव है, यू कैन यूज मसाला। आपने वो उसको सौते कर लिया और उसमें एक मुट्ठी बादाम डाल दिया। तो ये आप एक बर्नी में रख सकते हैं एंड कीप इट हैंडी टू हैव these things. Why I am emphasizing on these seeds? These seeds have omega-3 and 6 fatty acids. जो vegetarian source हैं, let me compare it to the fish oil things. Okay? जितना fish oil में हमारा ये ताकत है, उतना omega-3, omega-6 fatty acids ये seeds में है. So why not to use them, and which are easily available? So make use of it. अब जैसे freshly आपको हम ये मिल रहा है खरबूजा, मस्क मेलन, ओके, हम सब खाते हैं, हम उसके सीड्स मैक्सिमम 99% लोग फेंक देते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो उसको सुखाते, क्योंकि वो उसको सुखा के सौते करके खाते थे। उसका एक और मैंने यूज किया है, उसका मैंने इनोवेटिव ड्रिंक बनाया है, दैट इज मस्क मेलन जूस, मस्क मेलन सीड स्मूदी। ओके, तो आप ये सीड्स लीजिए, थोड़े से मस्क मेलन के चंक्स भी ले लीजिए। अब ये सीड्स को आप सॉरी मिक्सी में पीस लीजिए। ओके, अगर आप नॉन डायबिटिक है तो उसमें शुगर डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डायबिटिक है तो प्लीज शुगर फ्री डालिए या स्टीविया डालिए, एनी आर्टिफिशियल स्वीट। उसके आप एक स्मूदी बना सकते हैं। ओके, so we can make use of that also, and we can use a seasonal fruit for seasonal smoothie. Okay, again that is very easily available and very pocket friendly, so we can use that. So these are the things which, एक और बहुत मैं easy way कहना चाहूंगी कि चाट हम बना सकते हैं, स्प्राउट चाट बना सकते हैं, काले चने की चाट बना सकते हैं, काबुली चने की चाट बना सकते हैं, जो गुजरातीज और मारवाड़ीज हैं जो खाखरा बनाते हैं, रोस्टेड खाखरा, उसकी हम चाट बना सकते हैं, उसमें अनियन, टमाटो, कुकुम्बर डाल के। सो इवन दीज आर वेरी हैंडी snacks, munching snacks, and very nutritious one. Next I want to say is, as I said, water, but मैंने आपको ये नहीं बताया कि वाटर हमें मैंने ये बताया कि 3 to 3.5 लीटर पीना है। ओके, बट उसका क्या इंपॉर्टेंस है इतना? वाटर इज न्यूट्रल एंड मेनी टाइम इट इज कंसिडर्ड एज अ अल्कलाइन आल्सो। ओके, तो जब हमारे अंदर एसिडिटी हुई है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या एसिड बहुत ज्यादा है, तो ये वाटर हमारे को एक हमारे पीएच को और या हमारे को एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर। दैट्स व्हाई वी नीड वाटर। सेकंड, it helps us to remove toxins. Third, it helps us to maintain body temperature. Many times आपने कितनों का सुना होगा कि कोविड के बाद बुखार नहीं जा रहा, बॉडी टेम्परेचर बीच बीच में आ रहा है। रीजन, आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी टेम्परेचर रेज कर देती है। तो जैसे जैसे आप पानी पिएंगे लू जाएंगे, पानी पिएंगे लू जाएंगे, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। So it's very important to have that water. So let's take a water break. Now, coming to the probiotics. Okay, what is this probiotic thing? Probiotics is nothing, just a gut. We have some very good bacteria in our gut. Okay, which gets washes away with day-to-day thing, and especially कोई भी छोटे से छोटा infection भी आया, या हमने एक छोटा कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स किया 3 days का या 5 days का, आपके गट बैक्टीरिया गए अराउंड फॉर 2 to 3 months. यस, एक एंटीबायोटिक आपके गट बैक्टीरिया 3 months तक बिल्कुल जीरो कर देती। सो
अब ये गुड बैक्टीरिया हम कहाँ से? इट्स वेरी मच इजिली अवेलेबल इन द डाइट, हमारे घर की ही डाइट में। अब आप सोचिए, पीछे समझिए कि जब हमारा पेट खराब होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या खिलाते थे? दही, दही चावल खाने को बोलते थे। और दुर्ग में, भिलाई में जो वहाँ के जो लोकल पब्लिक है, छत्तीसगढ़ी लोग हैं, वो क्या खाते हैं? वो रात को राइस को पानी में, कुक्ड राइस को पानी में डिप करके सुबह लेते हैं। व्हाई? व्हाई दीज थिंग्स? हम जो इडली डोसा फर्मेंट करने रखते हैं, उसमें जो फर्मेंटेशन आ जाता है, अगेन दोज थिंग्स आर वेरी गुड। व्हाई? व्हाट दीज थिंग्स आर? दीज आर प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। जो फर्मेंटेशन होती है, जैसे चावल में जो पानी में डिप करके रखना, जो हमारे इडली डोसा बैटर को करना, ये फर्मेंटेशन जो होती है, नेचुरल फर्मेंटेशन, वो गुड बैक्टीरियाज लाती है। और जब हम वो खाते हैं, जैसे दही, दही भी इट्स अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट। सो जो हम ये सब खाते हैं, ये हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए खाना है। This is food for our good gut bacteria. That's why we increase with that. That's why they are promoted. So these are called prebiotics. Okay? तो ये हमें बहुत जरूरी है खाना। तो प्रोबायोटिक्स हमें बहुत हेल्प करते हैं फॉर इम्यूनिटी, फॉर डाइजेशन, फॉर कीपिंग आर bloating and other things on the way. So make sure that you are including probiotics and prebiotics in your diet. अब डाइट में हमें ये प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स लैक्स में मिलते हैं, बट हमारी बॉडी को, हमारे गट को चाहिए इन ट्रिलियंस, बिलियंस। दैट्स व्हाई वी नीड टू डिपेंड अपॉन द मेडिकेटेड probiotics or prebiotics. So you can ask your doctor which probiotic you can take. Okay, there are many strands available in the market, there are many brands, but it's always asked to the doctor. This is about probiotics. Now I want to emphasize over here now on meditation or yoga for the recovery of from COVID. Why this meditation and yoga? हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है, दैट इज गट, एंड हमारा जो ब्रेन है, दीज आर टू इंटर रिलेटेड थिंग्स। अब आपके दिमाग को कैसे पता चल जाता है कि आपका पेट भर गया है? आपका पेट और दिमाग कनेक्टेड है, इसलिए ना। आपका दिमाग क्यों बोलता है कि मुझे भूख लगी? द सेम वे आप जो सोचते हैं, आपका गट भी वहीं पे फील करता है। तो अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप अगर एंजाइटी लेवल में हैं, तो आपका गट भी उसी लेवल से गुजरेगा। तो टू calm down, it's very important to go for a meditation or for some yoga. Why I'm saying yoga? Because yoga mein pranayam and other things are very helpful for the meditation. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप ओम का धुनी लगाने बैठ जाओ या कुछ। अगर वो आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन मीन्स anything which you enjoy, which helps your brain to calm down. Maybe music, maybe anything whichever helps you, maybe drawing and painting. There are many therapies nowadays which are using drawing and painting for the calm down of brain and taking care of mental health. So please make sure that you are doing some or other thing for this. Last but not the least, I want to talk about the sleep. नींद, हमारी नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमारी बॉडी के लिए नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी, हमारे एसिडिटी के लिए। एसिडिटी, नींद, अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं हुई है तो एसिडिटी इंक्रीज हुई, स्पेशली द नाइट स्लीप। You can't cover your night sleep in the daytime. Amount wise you can cover, but not body wise. So make sure that you are having a proper sleep in night. एक विशियस साइकिल बन जाता है। आप लेट उठते हैं तो लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, फिर लेट उठते हैं तो लेट सोते हैं। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह जल्दी उठें। आप जब सुबह जल्दी उठेंगे और दिन भर आप इतना नैप नहीं लेंगे और अपने आप को मूवमेंट में रखते रहेंगे तो अपने आप नींद आएगी। एंड डोंट ड्रिंक एरिएटेड ड्रिंक्स अ लॉट, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे गर्मी हो रही है, मैं थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ले लेती हूँ,
मैं थोड़ी सी फिश ड्रिंक ले लेती हूँ. डोंट डू दैट बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प यू. That will adverse the effects. So make sure that you are trying to control as much as you can on these things. So in the end, I want to conclude by saying it, too much of anything is good for nothing. अगर हम कोई भी चीज एक्सेस में लेते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है. जैसे कि काढ़ा काढ़ा काढ़ा, हम काढ़ा काढ़ा पीते जा रहे हैं. अगर वो आपको हील कर सकता है तो वो आपकी हेल्थ खराब भी कर सकता है. ये हम अक्सर भूल जाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एवरीथिंग इन अ नॉर्मल मैनर. हल्दी लेनी है, हल्दी लेनी है, हर टाइम आप हल्दी हल्दी लिए जा रहे हैं. दैट इज नॉट गुड. ऐसे ही जो हर्ब्स हमारे हीलिंग हर्ब्स हैं, अगर आप काढ़ा भी पी रहे हैं तो प्लीज टेक इट इन अल्टरनेट डेज और इन अ स्मॉल क्वांटिटी ओनली. दे आर वेरी, कैसे बोलूं मैं, जैसे वो गरम तासीर के होते हैं. तो इट्स बेटर टू टेक इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. एंड डे टू डे की लाइफ में हमारे पास किचन में बहुत सारी चीजें हैं जो हीलिंग के लिए यूज होती हैं. प्लीज मेक यूज ऑफ दैट. So here I can conclude this, and I hope these small tips and knowledge will be helpful to you. Yes, thank you, Kanika. Kanika, there are a few questions. I'll just read them out. Yeah, the first, sure. how much sattu to be put in 1 glass of water? It depends, maybe 1.5 spoon to 2 spoons. और जो ब्रांड के आप सत्तू लेंगे उसमें मेंशन भी होता है. So it varies कि क्या, और आपका ग्लास कितना बड़ा है. 200 ml का है, 350 ml का है, तो अगेन इट वेरीज. सो आई प्रेफर कि आप उसमें डोसेज में देख लीजिए कितना यूज करते हैं. बट अराउंड 1.5 to 2 spoons is more than sufficient. Okay. The next question is, can you tell us foods that may help boost lung function, in particular during COVID, and what is the best vitamin for lung repair? As I said, there's no particular food that मैं बोलूं कि ये आपकी लंग को बेटर कर देगा. अगर ऐसा कुछ होता तो कोविड के इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते. Their recovery is with a holistic approach of all the vegetables and, as I said, all vitamins and minerals. Okay. And all vitamins and minerals are not present in one thing. So we need to eat everything. जो हमें balanced diet लेनी है. Here I want to show one thing. Balanced diet plate. Okay. I generally show this plate in every talk of mine because it's the most convenient way to take care of our balanced diet. Okay. Let's start with this white color. ये सारे 4 कलर्स सबसे पहले मैं बता दूं हमारे मील प्लेट में होनी चाहिए. ओके. सो व्हाइट कलर आपका रोटी हो सकता है, राइस हो सकता है, कर्ड हो सकता है. ग्रीन कलर आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या सैलेड या ग्रीन चटनी. येलो कलर योर दाल और एनी काइंड ऑफ करी. ओके. योर रेड कलर vegetables and salads. Okay, and tomato, something like that. So आपकी जो बैलेंस डाइट खाना है, अगर आप ये 4 कलर्स आप इंक्लूड कर रहे हैं तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिकवर वेरी फास्ट and you will be covering all the minerals and vitamins in this. I hope I have answered it. Yeah. That's another question from Dipali Bhamba. Is khichdi recommended for diabetics? Again, yes, it can be recommended, but again depend upon the आपके शुगर लेवल्स कितने हैं, आप कौन से मेडिसिन पे हैं, आप इंसुलिन पे हैं कि आप मेडिसिन पे हैं, मेडिसिन की भी पोटेंशियलिटी क्या है, वो सब मैटर देखना पड़ता है. बट in that case also once in a while you can have khichdi in the proportion जो मैंने आपको बताया है. 4 spoons of dal and 2 spoons of rice with half katori of vegetable. तो इसको मैं मसाला खिचड़ी कहती हूँ. That kind of मसाला खिचड़ी will not harm, but that doesn't mean कि आप हर रोज मसाला खिचड़ी खाएं. राइस इज अ राइस. राइस क्यों मना किया जाता है डायबिटीज को? इतना बुरा नहीं है, बट राइस में एक ही इश्यू है
कि उसमें फाइबर कंटेंट नहीं, ओके, इट्स एंड मोर ओवर वी गेट पॉलिश राइस, तो जितना भी थोड़ा बहुत भी फाइबर होता है वो निकल जाता है। तो अब जब फाइबर नहीं है तो हम राइस खाते हैं, हमारी शुगर लेवल एकदम स्पाइक अप हो जाती है एंड फिर सडनली हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। सो दैट्स व्हाई we don't recommend rice to the diabetics. That is the only reason. But if we are eating in a proportionate, then you can have once in a week. Okay. The next question is सब्जा को कैसे खा सकते हैं? हाँ जी, जो भी सीड्स हैं जैसे कि सब्जा, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, आई प्रेफर कि आप इसको सोक करके खाएं। खाने को तो हम सीधा भी ऐसे ही खा सकते हैं, रोस्ट करके फक्की भी मार सकते हैं, बट सीड्स, जो भी सीड्स होते हैं, दे जनरली हैव अ हार्ड कवरिंग, ओके, तो वो हार्ड कवरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है डाइजेस्ट करने के, तो इसलिए आई प्रेफर कि आप उसको 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर थोड़े पानी में भिगोएं एंड यू कैन ईट। अब जैसे जनरली मैं सब्जा ऐसा लेती हूँ कि मैं अपने बॉटल में ही डाल देती हूँ सुबह 1 लीटर की बॉटल में एंड 12 o'clock तक मैं उसको फिनिश कर, तो मेरे अंदर सब्जा भी चला गया और वो वाटर भी चला गया। तो सेम वे आप फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स को भी आप सोक करके खा सकते हैं। Okay. Another question is, what is the best time to have fruits? Can we have fruits with breakfast? अगर हम देखा जाए, अगर हम होलिस्टिक वे में या हम आयुर्वेदिक वे में बोला जाए तो शाम के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए और अर्ली मॉर्निंग भी नहीं लेना चाहिए। तो मैं दोनों स्टडीज को मिक्स करके न्यूट्रिशनली भी और आयुर्वेदिक भी, जो नेचुरोपैथी है, नॉट आयुर्वेदिक सॉरी, नेचुरोपैथिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि उसको मिल्स में लीजिए आप, जस्ट मिड मील्स में लीजिए आप, ओके, नॉट अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि कई फ्रूट्स एसिडिक होते हैं, तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग फ्रूट्स लेंगे तो मे बी एसिडिटी आपकी ट्रिगर कर जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक between योर ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में लिया या लंच और डिनर के बीच में। Okay. So this is the main what I prefer is this. Okay. The next question is from Shrishti. Can you recommend any exercise or gadgets to increase our lung efficiency after COVID? Yes, very much. जो अभी स्टडीज भी आ गई हैं and I have seen many clients benefited with that is spirometry. Can you get the spirometry? Very easily available in all medical stores. अगर वो चीज नहीं भी है, it's a spirometer is a gadget, okay? अगर वो नहीं भी है तो भी हम एक बहुत सिंपल तरीके से हम अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। बलून में हवा भर के जब हम ब्लो करते हैं तो हमारी लंग्स एक्सपैंड होती हैं, तो दैट काइंड ऑफ thing helps us to do that, but I'll always say that please ask your doctor for this, क्योंकि आपकी लंग्स की क्या सिचुएशन है वो डॉक्टर बताएगा, बट जो कोविड से नहीं हुए हैं तो उनके लिए ये देखिए, दिस इज स्पायरोमेट्री, ओके, Okay. आप इसमें ब्लो करते हैं एंड ये जो बॉल है ये ऊपर जाती है, ऐसे पूरी बॉल ऊपर जाएगी, ओके। सो दिस स्पायरोमीटर, ये सिंगल बॉल का भी आता है, 3 बॉल्स का भी आता है। इट इज coming up as a beneficial thing, but as I said, it is very important to consult doctor before taking this advice. Okay. Kanika, the next question is, when should one take probiotic? Yeah, this is very good question. It is always to take probiotic on a empty stomach. But by chance आपके medicines हैं या आप भूल जाते हो तो no problem, you can take before meals also. Okay. Next is from Shikha Sharma. She says, hello, Dr. Kanika. Thanks for a wonderful session. Due to prolonged COVID-related fever, the patient feels really weak and low on energy. What would you recommend for instant energy boost? अगर बिल्कुल ही कुछ खा नहीं पा रहे हैं तो आई प्रिफर ORS एज अ बैकअप थिंग। आप ORS ले सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉल एंड ऑल ऑन द एकदम से, बट अगेन मेक श्योर दैट यू आर नॉट डायबिटिक
and hypertensive. Okay. बाकी अगर आप नारियल पानी है, that also helps you a lot. So you can take that also in a natural sources. Then थोड़ा घर में नींबू पानी बना लिया, वो ले सकते हैं. जितना फ्लूइड आपके अंदर जाएगा, और फ्लूइड के साथ थोड़े थोड़े आपके, देखिए जो कोविड का आपको सिचुएशन है वो आपको एकदम से रिकवर नहीं कर पाएंगे. इट विल टेक टाइम एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में. आप अगर कुछ नहीं खा रहे हैं तो वो वीकनेस आएगी तो एसिडिटी बढ़ेगी तो आप नहीं खाएंगे. इन द सेम वे इसको ही हम पॉजिटिव करें कि हम कुछ खा रहे हैं तो थोड़ी वीकनेस कम होएगी तो आप थोड़ा खाएंगे तो आपको ताकत आएगी. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, so it will take time, but make sure that you are eating and drinking some or other thing. मेरा मेजर कंसर्न यही है कि आप भूखे नहीं रहें. That's something. The next question is, what foods to avoid during the COVID-19 pandemic? Yes, that's a very, very important question me to answer it. There's nothing foods, but yes, Tetra Pak things, ready to eat foods, semi-cooked foods, fizzy drinks should be avoided completely. So these are the things to be taken care. जैसे हम अभी कई वर्किंग लेडीज हैं, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम. ओके, उनको खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो हमने रेडी टू ईट फूड ले लिया जो सिर्फ हमको मे बी जैसे आईटीसी का आता है या किसी भी कंपनी का आता है. रेडी टू ईट फूड कर लिया जो सिर्फ वार्म करना है, नहीं, दैट इज वेरी बैड. ओके, जो फर्स्ट लॉकडाउन था बहुत लोगों ने वो यूज किए रेडी टू ईट फूड. मैगी लिया हमने, रेडी टू ईट जितने भी जिंजर गार्लिक मसाले हैं वो यूज किए. ऐसे छोटी छोटी हमने टोमेटो प्यूरी यूज की. आज आप हमारे घर में देखो इतनी बेसिक चीजें मिल जाती हैं. टोमेटो प्यूरी है, टैमरिंड पेस्ट है, ये कंपनीज निकाल देते हैं एंड वी आर गिमिक्स ऑफ दैट, वी आर मेकिंग यूज ऑफ इट. जब ये चीजें हम ज्यादा यूज करने लग जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जीरो हो जाती है एंड आवर बॉडी बिकम्स टॉक्सिक. तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, प्लीज अवॉइड देम एंड प्लीज रीड योर लेबल्स कंप्लीटली. सिर्फ शुगर फ्री कहने से वो आपके लिए अच्छा नहीं है. सिर्फ ऑयल फ्री कहने से वो आपके लिए सूटेबल नहीं है. आपको उसके अलग दूसरे कंटेंट्स भी देखने चाहिए. That is very important. So we need to avoid this, and obviously outside food, very heavy oily foods to be not taken. आप लेते हैं, आपका मन करता है, it's okay. आप अपना मील डे बना सकते हैं कि मैंने 4-5 days में एक बार हैवी मील बनाना है सब फैमिलीज के लिए. That way आप अपना मैनेज कर सकते हैं. So these are the tips for that. The next question is, do aspirins harm us as doctors are giving it to COVID patients? That only doctors can tell us. I'm not no one to tell any comment on that. Yeah. The next question is from Chandini Kothari. At what time intake of sattu water is generally preferred? Can lemon be added to it? Generally, empty stomach is preferred, but again, कई मेडिसिन होती हैं जो आपको एम्प्टी स्टमक लेनी होती है या आप नहीं ले पाते हो. किसी को इशू होता है कि वो अर्ली मॉर्निंग नहीं ले पाते हैं, तो आई विल प्रेफर आफ्टर ब्रेकफास्ट, नॉट एग्जैक्टली जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट, बट इन द मिडवे अराउंड. अगर आपने ब्रेकफास्ट 9-9:30 लिया है, so by 11:30 you can take as a mid meal, and yes, you can add lemon into it. Thank you. Kanika, there's another question. Is having dahi good for you if you have cough and cold or lungs have got affected during COVID? Dahi is very good for health. मेरे को एक मौका मिल गया बोलने का, because this is my favorite thing to say. Dahi is much better than milk. So please don't go behind milk. For the bachas also I am saying it. कि mothers concern हो जाती है, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता. Please don't worry. Dahi is much better than milk. Why? Because as I said, वो fermented है तो prebiotic है. Okay.
Second, it has vitamin C, which milk is not having. Okay. And vitamin C is required for the recovery of COVID, for the recovery of lungs, for the recovery of anything. But आपकी दही कैसे जमी है उस पे डिपेंड करता है. अगर आपकी दही फ्रिज में रखी हुई है या खट्टी दही है तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर थ्रोट. सो आई से कि आप रात को एक कटोरी दही जमाइए जो सुबह नाश्ते में खा सके. सुबह 8 बजे जमा देंगे, गर्मी का मौसम है, 12-1 बजे तक आपकी दही जम जाए. सो प्लीज ईट फ्रेश दही. और आपको ज्यादा लग रहा है तो 3 बजे के बाद दही मत लीजिए, क्योंकि दही की ऑब्वियसली तासीर ठंडी होती है, तो दही 3 बजे के बाद मत लीजिए. बट इन द डे टाइम यू कैन इजीली टेक दही, बट मेक श्योर इट्स फ्रेशली सेट. Okay. एंड द सेम वे इवनिंग में आप नारियल पानी मत पीजिए. ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग नारियल पानी बिफोर 3 o'clock, क्योंकि उसकी भी तासीर ठंडी होती है. सो दैट इज द थिंग. Okay. And is curd better than buttermilk? This is by Mr. Pandey. दोनों एक चीज से ही बनी हुई है. बट येस, बटर मिल्क इन द वे येस कि आपके उसके साथ पानी जा रहा है, तो मैं उसके लिए एक बेनिफिट काउंट करूंगी कि मुझे जैसे आपको पानी ज्यादा पिलाना है तो मैं उसको बटर मिल्क दूंगी. एंड वी कैन मेक अ मसाला छाछ ऑल्सो. ओके, जैसे अभी धनिया डाल दिया, पुदीना डाल दिया, भुना जीरा, जो भुना जीरा पाउडर है, घर में भुना हुआ जीरे का पाउडर, दैट इज वेरी वेरी ठंडा तासीर, तो वो हम जरूर लस्सी में डाल सकते हैं. अगेन धनिया पुदीना इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन, तो हम मसाला छाछ बना सकते हैं. इन दैट वे वी कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ लस्सी. Good, very nice. Any more questions? If anybody wants to ask, please raise your hand and we'll unmute you. Mala Tandon ji has a question. Nimisha, could you unmute her? हाय माला. निका, अच्छा बहुत मजा आया सुन के. वापस से लगता है हम लोग ना रिफ्रेश हो गए. पहले इतना फॉलो करते थे, अभी बिल्कुल ठंडे हो गए, आलस आ गया, हो गया, रिफ्रेश हो गया सारा कुछ. बट एक था मुझे पूछना था फॉर एसिडिटी के लिए. यस, रिफ्लक्सेस होते हैं ना, जो जैसे गर्ड कहते हैं जिसको, जो तुम्हारे एसिडिटी रिफ्लक्स तुम्हारे हार्ट बर्न्स के लिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हाँ जी, उसके लिए मेन आपको यही रखना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, और आपने मेन खाने के बाद लेटना नहीं है, और एकदम से आपने ऐसे काउच पे बैठना भी नहीं. थोड़ा सा ये पोर्शन जो आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, जहां अपर स्टमक जिसको बोलते हैं, उसको ऊपर रखिए. और ये भी नहीं करना कि एकदम विग्रस एक्सरसाइज करने लगा. So these small things आपको ये ध्यान रखना है. And acid reflux is very much related to your sleep pattern. Yes, आपके स्लीप कैसी है? मैंने जैसे बताया वो नाइट स्लीप आप दिन में कवर नहीं कर सकते. जो हम रात को सोते हैं हमको होता है, that helps your mind and that keeps our body to grow and repair. तो अगर हम रात को ढंग से नहीं सोए हैं तो surely you are going to have this kind of issues. तभी जो बीपीओ पे काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, they have very much acid reflux issues and digestion issues because it is related to each other. So sleep, just watch out your sleep pattern, your water intake, this is very important, and आपके meals का timing and the quantity of meals. These things to be taken care. There's another question, Kanika, from Meena Vogi. Says, should ginger be used or not because of the heat? Ginger can be used very well, no issues in that. Ginger has a dual effect. It has a hot effect also and a moderate effect also. It doesn't have cooling effect but moderate effect. So आप थोड़ा यूज कर सकते हैं. बट जो अदरक वाली चाय है, जैसे हम जनरली जिंजर उसमें यूज करते हैं, अदरक वाली चाय थोड़ी सी ज्यादा हॉट हो जाती है. सो इफ यू आर एसिडिक प्रोन तो ट्राई नॉट टू यूज इट. एंड अदरवाइज हम जिंजर खाने में भी यूज कर सकते हैं फॉर द डाइजेशन पर्पस. देयर इज नो इश्यूज. Okay. The next question is from Srishti. She says, if we are taking any antacids during COVID, would you suggest some tips for that?
Yeah, sure, why not? That is very important question and to be taken care. कि हमें डॉक्टर्स एंटासिड्स देते हैं, तो बट वो बेचारे वो ना इतने बिजी होते हैं ना, वो हमें बताना भूल जाते हैं कि हमें कैसे लेना है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आई वांट टू गिव टिप ओवर हियर इज कि आपने जब भी एंटासिड लेनी है, उसके हाफ एन आवर आपने कुछ नहीं लेना, नॉट इवन वाटर. आपने जो एंटासिड के साथ अगर सिरप है तो आपने सिरप ऐसी लेनी है, बट अगर टैबलेट है तो जस्ट विद 3-4 सिप्स आपने जो वाटर लिया, दैट्स ओके. बट फॉर हाफ एन आवर प्लीज डोंट टेक एनीथिंग. Another tip I want to keep over here is कि don't lie down after taking any kind of antacid. आपका stomach lie down situation में नहीं होना चाहिए. You should be in upright situation. ओके, तो आप अगर बेड पे भी बैठना चाह रहे हैं, मतलब आप चलने के उसमें नहीं है हालत में, आप बैठना चाह रहे हैं, तो आप टेक लगा के बैठ सकते हैं. आप काउच में स्लॉच नहीं कर सकते, आप लेट नहीं सकते. सो दिस टू बी टेकन केयर ऑफ इट. Okay. Thank you, Kanika. Any more questions? Yeah. Yeah, Sukriti ji. Yes. Good evening, Kanika. Very good evening. It was lovely hearing your very informative session. Thank Kanika, you. actually, like my son and the full family are just recovering from COVID, and Okay. he was in hospital. He was in a bad shape. He's just come out of it, but someone suggested that he take raw garlic early in the morning on empty stomach. Do you suggest that it's a good thing to take 1 or 2 pods of garlic early morning, empty stomach? गार्लिक की भी वही है, दो प्रकृति है उसकी, गर्म है ज्यादातर, तो इसलिए मैं गार्लिक अवॉइड करना चाहूंगी. ओके, बिकॉज अभी राइट नाउ वी डोंट हैव सो मच ऑफ स्टडीज कि हमें समझ में आए कि जो ये गर्म प्रकृति वाली चीजें हैं वो आपके कैसे रिएक्ट कर रही है. तो मैं अवॉइड करना चाहूंगी कि आप अवॉइड करें. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, किसी आयुर्वेदिक ने कहा है कि कैसे कहा है, but I'll try not to take. Okay, thank you so much. Thank you. Most welcome. Yeah, here I want to give one tip कि ghee is very soothing over. Ghee is very beneficial for acidity. So we can take ghee, but make sure that आप उतना ऑयल अपने पूरे मील में से हटा भी रखें. ऐसे नहीं कि आप ऑयल भी खा रहे हैं और उतना नहीं, घी अच्छा है, डाइटिशियन कनिका ने आपको घी खाने को कहा है तो आप घी पी रहे. डोंट डू दैट. घी अच्छा है इन द सेंस कि आप सिंपल वे में, जैसे हम खिचड़ी है तो बिना ऑयल के हमने खिचड़ी बनाई, उसके ऊपर हाफ स्पून हमने खिचड़ी घी डाल. ओके, इन दैट वे वी कैन हैव इट. और या फिर हमने जैसे दाल ली, बिना ऑयल की दाल बनाई, उसमें हमने आधा चम्मच घी डाल दिया या कुछ ड्रॉप्स डाल दिए. बट अगेन वी नीड टू सी द कोमॉर्बिडिटीज. हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, आपके क्या इश्यूज चल रहे हैं, वी नीड टू सी दैट. वी कैन ब्लाइंडली टेक घी, बट या इफ यू आर नॉट हैविंग एनी कोमॉर्बिडिटीज, you can take ghee 1 spoon of it, and if you are vegetarian then surely yes. Okay, thanks, Kanika. Very useful tip. Any more questions? Yeah. Hi, Kanika. Hello, auntie. बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टिप्स जान करके, और सबसे अच्छा लगा कि भिलाई की छोटी सी बच्ची जो है अब हमको इतनी सारी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रही है, जिसको हम लोग जानने के लिए बहुत अच्छा लगा. Totally my pleasure. हमारा एक क्वेश्चन था कि तुमने हाँ जी. बोला था कि रॉ वेजिटेबल्स की स्मूदी बनाने के लिए, और जी. बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत होता है, यू शुडंट टेक द रॉ, थोड़ा सा स्टीम करके लेना है. तो हाँ शुड जी. वी गो फॉर दैट स्मूदी? Yeah, we can take, because हम सैलेड्स भी तो रॉ खा ही रहे हैं. ओके, तो इतना हम ऐसे भी नहीं कि हम पूरा दिन हम रॉ वेजिटेबल्स खा रहे हैं. इट्स जस्ट 150 ml. नो डाउट दैट पेस्टिसाइड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बट वी कांट जस्ट एस्केप फ्रॉम दैट. ओके, अब हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो वो इंजेक्टेबल खा रहे हैं, तो हम मैक्स टू मैक्स ये कर सकते हैं कि हम अच्छे से वॉश कर लें. और अगर आपके आई कांट से कि आपको ये बहुत ज्यादा एंटी करेगा, बट इट विल हेल्प इन अ बेटर वे. और हम थोड़े दिन कुछ ले सकते हैं, दैट विल हेल्प.
ओके, तो उसको कंटिन्यूअस नहीं खा सकते, रेगुलर ले सकते, रेगुलर बेसिस? रेगुलर में मैं ये कहूंगी कि ऑल्टरनेट डेज लीजिए रेदर देन टेकिंग इट एवरी डे, ओके, बिकॉज बीच में एक फैशन आया था रॉ डाइट लेने का. ओके, people were getting mad on that raw diet. So people whole day they were on raw vegetables and raw. तो उसका ये issue हो जाता है कि they are not digestible in that. And moreover we are not taking it since our childhood. तो हमारे organs को, हमारी body को आदत ही नहीं है. And moreover, as you said, lot of pesticides and germs are there in that, in many things. So वो issue हो जाता है. That's why I give alternate days, not every day. okay, okay. Okay. Thank you. First Kanika, time. the next question is from Nimisha. She says that we were taking kadha throughout winters with dalchini, turmeric, ginger, etc. Is it okay to continue taking it now during summers? As I said कि कोई भी अच्छी चीज in excess is बुरी. Okay? तो आप अगर काढ़ा ले रहे हैं तो take it in alternate days. And बहुत सारी चीजें आप मत मिक्स कर दीजिए. ओके, आयुष मिनिस्ट्री ने उन्होंने एक काढ़ा दिया है और एक सुदर्शन काढ़ा भी है, आप उसको फॉलो कीजिए. अब क्या होता है, लोग उसका तो फॉलो करते हैं, फिर किसी से सुनते हैं यार इसमें ये नहीं डाला हुआ, ये तो बहुत अच्छा है, चलो मैं ये भी डाल दूं. तो ऐसे करते करते वो जो 5 चीजें हैं वो 20 चीजें बन जाती हैं. एंड इट गिव्स नेगेटिव इफेक्ट. बहुत ज्यादा हमने पोस्ट लॉकडाउन, जो फर्स्ट लॉकडाउन था उससे पोस्ट लॉकडाउन हम डाइटिशियंस को बहुत ज्यादा केसेस आए हैं एसिडिटी, ओके, एंड लैक ऑफ एपेटाइट के बिकॉज ऑफ दीज काढ़ा ओनली. सो दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग आउट इट कि डोंट टेक इट इन अ वेरी एक्सट्रीम केसेस. आपने अगर मेडिसिनल वैल्यू के लिए अगर आप वैल्यू करते हो, अगर सिंपल आपने 5 पत्ते तुलसी भी खा लिया तो इट विल हेल्प यू. आपको जरूरी नहीं है दालचीनी, बड़ी इलायची और ये और वो डाल के आपको लेना. तो आई प्रेफर अगर आप काढ़ा ले रहे हैं प्लीज टेक इट इन अल्टरनेट डेज. समर्स में भी आप ले सकते हैं, देयर इज नो हार्म, बट मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग 3 to 3.5 लीटर ऑफ वाटर, बेसिक वाटर. That is the most important thing. Thank you so much. Okay. Any more questions? Anybody? Yeah, they can unmute themselves if they want to ask Please questions unmute now. and ask questions. Yes, ma'am. Very nice session, and it was Thank so you. kitchen friendly. I had my rounds in the kitchen. मेरा काला चना भीग गया है, कल उसकी चाट बनने वाली है. Wow. And I gulped down 2 pieces of amla also. So you know, you really reminded such wonderful things. So great Thank session. you. Enjoyed it thoroughly. Yeah. Thank you, I'm Anubha. really very happy that I could promote something in your kitchen and do like you people got ready to do something. क्योंकि वो बात होगी ना कि पता सब कुछ सबको है, बिकॉज Actually. हम ऑथेंटिक किचन से ही बिलोंग करते हैं, हमको सब कुछ पता है. लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, जो गिमिक्स होते हैं, वो हमें इन सब चीजों से दूर कर देते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इन सब चीजों को वापस ला पाई. Anybody else wants to ask any question? Yes, ma'am. Yes. Yes. Ma'am, जैसे लौकी. Right now I'm Yes, ma'am, you can ask. Yes. Can I ask? Yes, please go ahead. Okay. मैम, लौकी में अदरक डाल के उसका जूस पी सकते हैं? लौकी का जूस बहुत अच्छा होता है. तो मैंने जैसे कहा है 2-3 चीजें मिक्स करने की जरूरत नहीं है. ये जरूरी नहीं कि ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है, तो इसलिए उसको मिक्स कर दिया. तो कॉम्बिनेशंस हमें थोड़ा देखना चाहिए. अदरक और लौकी को ट्राई टू नॉट मिक्स इट. हम सिर्फ लौकी का जूस लें, वो ज्यादा अच्छा है. और वो भी जरूरी है कि हम लौकी को टेस्ट करके खाएं. अराउंड आई थिंक 3 to 4 years बैक पूरे पेपर में भी आया था कि दिल्ली में कुछ जो लौकी आई थी वो खराब आई थी और वो उसमें इश्यूज हो गए थे और लोगों ने जैसे लौकी का जूस पीते उनको काफी वॉमिटिंग्स वगैरह हुई.
एंड उसकी जब स्टडीज हुई थी तो यही पाया गया था कि वो कड़वी लौकी थी। ऐसी खीरे की भी बात है। तो मेक श्योर दैट प्लीज अगर आप लौकी का जूस पी रहे हैं, गोल लौकी भी, इवन गोल लौकी जो होती है, इवन कद्दू जिसको बोलते हैं, इवन दैट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट मेक श्योर कि वो हम पहले थोड़ा खा के देखें, कड़वा ना हो। मैडम उसको बॉयल करके अगर हम लोग करें तो बॉयल उसको करके बॉईल उसे करके, उसका बॉईल करके आप रायता बना सकते हैं, बहुत अच्छा है, वो ठंडक प्रकृति का है। मैडम थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं अभी जस्ट कोविड से रिकवर हुई हूँ और मुझे ये सब की बहुत जरूरत थी। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, इट्स Get well टोटली soon. माय प्लेजर। well और soon. मेरा मोटो भी यही है कि जिनको कोविड हुआ है उनको मेरे ये टिप्स हेल्प कर सके। कि अभी आई एम बहुत रियली weak वेरी हूँ हैप्पी। और आज आपका ये प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल रहा। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू टू इनर व्हील हु हैज अरेंज्ड दिस। Most welcome. Thanks, Yeah. Kanika, for Most taking the welcome, time. So looking forward Yeah. to it. Otherwise, we get so confused कि क्या Confused. खाएं क्या नहीं करें. Any Anybody questions? else? Anybody else? Yeah, Santosh. Right. Please unmute yourself. Usha auntie. हाय कनिका। हाय। मेरा ये था कि जैसे सुबह अपन उठ के सबसे पहले क्या लेना चाहिए? अब ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ये बहुत हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है कि आपकी बॉडी कैसे है, क्या है, आपके कैसे। अब जैसे थायराइड वालों को ऐसे कि सुबह उठते ही सब पहले थायराइड की मेडिसिन लीजिए, फिर आधा घंटे बाद कुछ हम लेंगे। अब किसी को एसिडिटी होती है, किसी को कुछ होता है। अब जैसे मैं अलग अलग चीजें बोलती हूँ, मैं जैसे किसी को ये वाला डिटॉक्स वाटर बोलती हूँ, किसी को एजवाइन जीरे वाला वाटर बोलती हूँ। इट अगेन डिपेंड्स आपका कैसा है, क्या है। अच्छा। मैं जनरल तो ये जो आपका पानी है, ये धनिया पुदीने वाला, पुदीना तुलसी और नींबू वाला, ये आप खाली पेट उठ के ले सकते हैं, बिकॉज ये आपके डाइजेशन को बेटर करेगा, प्लस ये गर्मियां हैं तो इट विल हेल्प। कैसे डिसाइड करते हैं? थैंक यू कनिका, हाँ जी, बहुत अच्छा सब कुछ बताया तुमने, इतना मजा आया, बहुत ध्यान से सुन रही हूँ सब। थैंक यू। कनिका डिसाइड कैसे करती है कि धनिया वाला पानी पीना है या जीरे वाला पानी पीना है? इट अगेन डिपेंड्स कि आपके पूरे दिन का डाइट कैसी है। मैं जब किसी भी क्लाइंट, जो कोई भी मेरे पास क्लाइंट आता है, आई स्पेंड 1 hour विद हिम टू नो हिज होल डे डाइट, उसके घर का फूड कल्चर, उसके पूरे रिपोर्ट्स, उसके खुद की लाइकिंग डिसलाइकिंग और उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। देन ओनली आई डिसाइड दैट काइंड ऑफ अ डाइट व्हिच आई हैव टू गिव यू। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑनलाइन करते हो? हाँ जी, ऑनलाइन करती हूँ बिल्कुल। अभी पैंडेमिक में तो बिल्कुल ऑनलाइन ही है। ओके। और कोई एनी मोर क्वेश्चंस? Hi, Kanika. Yeah. Well, this is not a question, but it's an endorsement that you always deliver a wonderful speech. This is one of those. Thank you so much. Hi, Kanika. Hi, Kanika. Hi, hi. मैं बहुत थक गई थी इसलिए बाद में आई हूँ अभी। हेलो खुशबू। नमस्ते आंटी। सबको दिखाने, सबको और सबको देखने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तबीयत ठीक नहीं थी, तुम सब लोग की वजह से आ गए वापस। गुड आंटी। गुड आंटी, अच्छा लगा देखकर आंटी। इसीलिए हमने कहा चलो थोड़ा 2 मिनट बाय आए कर लो। इसने तो पूरा चार्ट बना के भेज दिया है। बहुत बढ़िया। वेलकम बैक कनिका। पुष्पा। हाँ जी लता। वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा देख के। सब लोगों को क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? और कुछ पूछना है किसी को? हेलो कनिका। हेलो। हेलो, कहाँ है अदिति? कनिका से बात हो सकती है क्या? हाँ मम्मी करिए। अच्छा कनिका, बहुत अच्छा लगा, तुमने इतनी अच्छी बातें बताई, वेरी नॉलेजेबल, बहुत अच्छा। और तुम्हें तो बचपन से देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है आज तुमको ऐसे देख के, तुमसे इतनी अच्छी, मतलब मजा आ रहा है देख के।
और ये एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि ये प्रोटीनेक्स पाउडर जैसे है हाँ जी ले सकते हैं क्या? मतलब अभी कोविड के नहीं, वैसे ही नॉर्मली भी जैसे कभी वीकनेस लगती है तो ले लें क्या इसको? इज इट गुड? हाँ जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को ना देना पड़े किसी को भी कोई भी सप्लीमेंट्स, क्योंकि टचवुड हमारी डाइट बहुत अच्छी होती है, किचन से हम सब कुछ ले सकते हैं, बट इन अ केस आपको लेना ही है तो आप किस पर्पस से लेना चाहते हैं वो चीज के मार्केट से सप्लीमेंट्स लीजिए। अब जैसे जो प्रोटीन एक्स पाउडर है ये बहुत पुराना ब्रांड है और उस टाइम तक इतने सप्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो जनरली डॉक्टर्स और हम लोग भी किसी को यही प्रिस्क्राइब करते थे। बट आज के टाइम पे आपको कैसा चाहिए, आपको हाई प्रोटीन चाहिए, लो कैलोरी चाहिए, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी चाहिए, ऐसे करके बहुत चीजें अवेलेबल हैं, बहुत ब्रांड्स में अवेलेबल हैं। तो आप उस पर्पज से वो देख सकते हैं, नॉट ओनली प्रोटीन एक्स बट देयर आर मेनी थिंग्स। हाँ और भी है, कई है। हाँ जी, एंड मोर ओवर अगर सिर्फ प्रोटीन के लिए ही चाहिए तो आप और भी कोई और देख सकते हैं जिसमें जो प्रोटीन के आपके जो सेगमेंट्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड्स कौन से पाउडर में हैं, कितनी कैलोरीज हैं, कितना शुगर है। मैंने कहा ना आपको लेबल देखना बहुत जरूरी है, तो वो जरूरी देखिए। फिर एज वाइज हैं, बच्चों के लिए अलग आते हैं, एल्डरली पर्सन्स के लिए अलग आते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अलग आते हैं। सो मेक श्योर दैट जो आपकी जरूरत है आप उसके हिसाब से लें, जस्ट नॉट ऑन अ प्रोटीन एक्स और हॉर्लिक्स ब्रांड, देयर आर मेनी मोर ब्रांड। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। मोस्ट और वेलकम। एक बात और पूछनी थी, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं जो जनरल, हमको हाई ब्लड प्रेशर है, जो शुगर की है, बॉर्डर लाइन है पर लेते हैं, तो हम ब्रेकफास्ट के बाद ले लेते हैं ये सब एक साथ। जब ब्रेकफास्ट किया जिससे भूले ना, नहीं तो भूल जाते हैं फिर दिन में, तो हम लोग ये सब, तो क्या वो ठीक है लेना ऐसे एकदम ब्रेकफास्ट के बाद? वो डॉक्टर आपको प्रिसाइसली बताएगा कि कौन सी मेडिसिन आपको कब लेनी है, बिकॉज देयर इज एन इंटरफेरेंस ऑफ मल्टीविटामिन्स। अब जैसे थायराइड की मेडिसिन के 6 घंटे तक आप कैल्शियम और आयरन नहीं ले सकते, कैल्शियम और आयरन आप इकट्ठे नहीं ले सकते, इसलिए आपको वो डॉक्टर ही प्रिसाइसली बता सकता है कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, एंड प्लीज मेंटेन दैट, आई विल से। ओके, थैंक यू सो मच। Kanika, there's another question from Rashmi Jain. This is Rashmi Jain. She says, COVID के बाद मटकी का पानी पी सकते हैं क्या? बिल्कुल पी सकते हैं, इनफैक्ट मटके का पानी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। रीजन ठंडा पानी हमको नहीं पीना है, और मटके का जो पानी होता है वो हमारे आसपास जो हमारे टेम्परेचर होता है, बाहर का जो टेम्परेचर चल रहा है उसके हिसाब से वो ठंडा करता है, तो आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। कैप्सिकम वगैरह जो पापा खाते हैं कैप्सिकम खावाना है तरी इतनी चटनी खाता कहीं गरम can you please saying, you know, sub Zincovit and vitamin C, we're all been taking for such a long time. Yeah, is it, what do you say, is it, do you recommend to take it for such a long time, or should we give it a gap, or how do we? विटामिन सी के लिए तो आई से कि हमारे पास टचवुड बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। सो इफ यू आर टेकिंग ऑफ दीज सोर्सेज देन यू डोंट रिक्वायर टैबलेट, बट हाँ इफ यू आर अ पोस्ट कोविड केस या घर में किसी के कोविड है तो आई सप्लीमेंट यू विद द विटामिन सी टैबलेट्स। अदरवाइज अगर आप ऑल्टरनेट डेज में आंवला ले रहे हैं और टमाटोज आप खा रहे हैं, आप नींबू ले रहे हैं, एक पूरा नींबू आपके अंदर एक दिन में जा रहा है, then there is no need of supplements. Kanika, there's another one from Disha Mirajkar. She says, Kanika, psoriasis patients, which fruit or vegetables should avoid? Nothing like that. Yeah. Hi Disha, by the way. Nothing like that we need to avoid it, but we need to avoid again toxic food. Okay, that is very important. So make sure that psoriasis is again a skin issue, plus it's more of mental health also. It is related to your mental health also. So it is more of that kind of a thing. और जो डॉक्टर आपके मेडिसिन दे रहा है या जो है, so there are few combinations which naturopathy tells you
not to take those combination, but that doesn't go with my nutrition based thing. So that's why I don't promote that. But if you really concerned about that, then you can always ask some naturopathy doctor. They can give you insight about that. Okay. One more question, Kanika, from Meena Boraji. She says, which whey protein should be given to diabetic patients? Again, there are many bars in that. आपके क्या जरूरत है वे प्रोटीन देने की, क्यों जरूरत है? That is the most important question for me. Is that diabetic patient is having any issues, and उसका डायबिटीज कैसी है, कितने साल पुरानी डायबिटीज है, और उसके किडनी के क्या रिपोर्ट्स हैं. Those things matters a lot for me rather than telling the how much and which whey protein to be taken. बत्ती जला दो ना. There are many things to be taken care. हम एडवर्टाइजमेंट में सोच लेते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं and हम वो पाउडर स्टार्ट कर लेते हैं, but there are many things to be taken care. And another question is कि कितनी देर तक भाप लेना चाहिए? Yeah, this is very good question, क्योंकि हम भाप ले लेके अपने आप को जला चुके हैं. That is very. तो सबसे बड़ी बात है कि भाप जैसे हम पुराने जमाने में लेते थे ना, भगोने में पानी लेके और टॉवल लेके, वो सबसे अच्छी भाप होती है, वो प्रॉपर भाप होती है. अभी तो हमारे पास स्टीमर्स हैं, तो हम स्टीमर को अपने एकदम सामने रखते हैं और रख लेते हैं, और बाकी स्किन पूरी जल जाती है एंड प्रॉब्लम हो जाती है. तो अगर आप स्टीमर से भी लेते हैं तो उसको काफी दूर रखिए और उसका डायरेक्ट मत आने दीजिए भाप. उसका गरम जो एहसास है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है. उसमें हमको वो गरम जो सांस है वो हमको लेनी है, हमको स्टीम एकदम नाक के अंदर नहीं लेनी है. So make sure that you are taking it for 4 to 5 minutes, but again थोड़ा दूर रखिए. नहीं, पर कोविड के बाद कितने दिन तक लेना वो आपको डॉक्टर बताएगा, बट अगेन 1 week to 10 days तो जरूरी ही है. एंड टॉवल लगा के लेना चाहिए, इवन विद द स्टीम. टॉवल लगा के रखना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, वो भाप का वो एटमॉस्फेयर होना चाहिए. अगर हम टॉवल नहीं लगाएंगे तो वो तो डायरेक्ट वो स्टीम आएगी और वो उड़ जाए, तो वो भाप वाला आपका एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट होगा. और अब गर्म पानी नहीं पीना है, मटकी का पी सकते हैं. जरूरी नहीं है कि मटके का ही पीना है, और जरूरी नहीं है कि गर्म पानी ही पीना है. गर्म पानी आपके गर्म पानी पिए और मटकी का पिए तो सरद गर्म नहीं होगा. नहीं, तो आपको ऐसा तो नहीं कहा कि अभी एकदम से गर्म पानी पिया और आपने एकदम से मटके का पानी पिया. आप जैसे गर्म पानी जनरली हम सुबह पीते हैं सभी लोग, ताकि पेट साफ हो सके और जो थ्रोट में हमारे कुछ बैक्टीरिया है या कुछ है वो साफ हो सके. ओके. और हर खाने के बाद भी गर्म पानी नेचुरोपैथी बोलती है ताकि हमारा डाइजेशन बेटर. सो दिस इज द ओनली टाइम यू शुड ड्रिंक. बाकी टाइम आप अपना नॉर्मल पानी पीजिए मटके का, या आप नॉर्मल जो बाहर रखा हुआ पानी पीना है. ओके, थैंक यू. Thank you, Kanika. You've given us so much time and such an enlightening session. Any more questions? Or we could, shall we end the session now? Yeah. Please unmute yourself. कोई questions है किसी के पास? कनिका से ऑनलाइन मिलेंगे. Anytime, most welcome. WhatsApp number and you can contact her directly. कोविड के बाद खांसी अभी रह ही रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मैंने आपको खांसी है. हाँ जी, थोड़ा पानी, एक तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाइए क्योंकि वो बहुत जरूरी है. दूसरा जो ड्राई कफ है उसके लिए तुलसी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, तो आप तुलसी के पत्ते खा सकते हैं, या तुलसी वाला पानी जैसे मैंने बताया तुलसी देना. हाँ तो ये आंटी का है ना. Let me mute everybody. Yeah, just. Yeah. तो दोनों भाई टकल है. Sorry. Somebody might be there. Yeah, I think we've come to the end of the session. I'd like our secretary, Bhavna Jotwani, to propose the vote of thanks to Kanika and to all the members who have present
Thank you so much, Dr. Kanika, for such an informative and insightful session. Really, the tips you gave were so practical, and they were you're all so easily available. The main thing, all generally everybody's, scared of is like the dietitian gives us all, very fancy things to eat, fancy, stuff to follow. So that was the very, very good thing about this session, that you gave such practical information and everything which is easily available in our kitchens. So thank you so much, dear, for such, taking out time from your busy schedule. And it was so good to have you with us, and to many more sessions together, Kanika. We would love to have so many sessions with you. Thank you so much. Yeah. And I would also like to thank our PDC, our Mrs. Chitra Bahadur, who was with us throughout the session today, our very own senior members, who are always so encouraging and so supportive in everything we do and bring forward for all of you. I would also like to thank our, relatives, friends, and so many members, from our Innerview district who have joined us today in such large numbers. Thank you so much, everyone. Last but not the least, our technical support team headed by Mrs. Nimisha Singh, always our joint secretary, and she's always so helpful in everything. Thank you so much, Nimisha, always. And once again, Kanika, thank you so much. We were really honored and really very, very happy to have you with us. Thank you. It's totally my pleasure. I'm so happy that I could deliver some tips and tricks and could help my near ones and dear ones. Thank you so much. Yes, absolutely. So much time with us. So proud of you. So proud. So proud of you. Yeah, we are feeling so proud that our very own lovely session, and God bless you, Kanika. Very close to our hearts. So it's like that only. Thank you. So very proud of you. This session was really, really very close to my heart. Yeah. So many absolutely. people, known people, and helping. So really happy to help you. Bilkul. In such short notice, you agreed and you gave us so much time. Thanks a lot. Kanika. Yes, absolutely. So many questions you answered, and so patiently. You were so patient in answering all questions and queries. That is so sweet of you, dear. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Kanika. Thank you for attending the session. Thank you. Yeah. Thank Thank you so much. Thank you very much.